कल का बचा हुआ पार्ट, द लीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, along with that the scheduled एम्ब्रियोलॉजी क्लास जो हर बार तुम्हारी होती है। तो मैंने ऐसे सोचा कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम खत्म हो गया, एक नया सिस्टम शुरू करना था। यहाँ पे न्यूरोएनाटॉमी शुरू हो रहा है, तो आई विल बी डिस्कसिंग द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। 4 टर्न्स में डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इट विल बी कंप्लीटेड। 2 या 3 टर्न, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, अगर हम डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम कौन से जर्म लेयर से डेवलप होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म? सो ऑल ऑफ यू नो दैट एक्टोडर्म एट सर्टेन पॉइंट या किसी एक पोर्शन में इट चेंजेस इनटू न्यूरोएक्टोडर्म एंड देन इट गिव्स राइज टू द nervous system. That process is known as neurulation. The formation of neural tube occurs. So there are 3 germ layers: the ectoderm, endoderm and mesoderm. Ectoderm gives rise to neural tube, and this neural tube extends from cephalic region till the caudal region. So that is why whole of the central nervous system will be derived from a neural tube. जैसे हार्ट ट्यूब बनाया था, ऐसे ही न्यूरल ट्यूब भी बनेगा। फर्क इतना है कि हार्ट ट्यूब डिस्प्लेस होके फोल्डिंग के साथ में थोरैसिक कैविटी में आ गया था। न्यूरल ट्यूब एक्सटेंड करता है हेड एंड से टेल एंड तक। तो मुझे बताओगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? Brain and spinal cord. So both brain and spinal cord are derived from an elongated neural tube, and that is the derivative of ectoderm and again neuroectoderm. हाँ, ये याद हो तो ये जनरल एनाटॉमी में 2 कैविटीज दिख रही हैं और बीच में ये क्या दिख रहा है? ट्राइलमाइनर जर्म डिस्क दिख रही है। तो ब्लू कलर्ड का क्या है? ब्लू कलर्ड वन इज दी इट इज विच कैविटी? दिस इज दी amniotic cavity and then the yolk sac cavity. Amniotic cavity at lower end it is lined by the ectoderm, and between ectoderm and endoderm there is mesoderm. So red colored or maroon colored layer is the mesoderm. So there are 3 germ layers. So that means कहीं ये blue color जो structure है ectoderm, that will be giving rise to the neural tube. This neural tube formation occurs first. There occurs the formation of the notochord, and that notochord differentiates the ectoderm which is surrounding this notochord into neuroectoderm. And then the development of the vertebral column it takes place from the somites or the mesoderm. अब इसको और enlarge इसमें देख लो, ये primitive groove है, यहाँ पे ectoderm है, बीच में mesoderm है, and then there is embryonic endoderm. So this is trilaminar germ disc kind of structure, but here there will occur the development of the neural tube. वो न्यूरल, लेकिन ये पूरा का पूरा अगर हम देखें तो पूरा ही एक्टोडर्म है। सिर्फ कुछ पोर्शन न्यूरो एक्टोडर्म क्यों बन रहा है? क्योंकि बाकी के एक्टोडर्म से तो क्या बनना है? स्किन विल फॉर्म फ्रॉम द एक्टोडर्म। तो पूरा एक्टोडर्म जो है दैट विल नॉट फॉर्म न्यूरो एक्टोडर्म। जितने पोर्शन में मीजोडर्म में यहाँ पे नोटोकॉर्ड बन रहा है, the ectoderm which will surround this notochord will be converted into neuroectoderm, and a plate-like structure will be formed first. That structure is known as neural plate. ट्यूब बनने से पहले क्योंकि flattened germ disc था, पीछे की दोनों रोज खड़े हो जाओ, last rows from this side, stand up all of you stand up, all of you. So first there occurs development of the notochord, and around the notochord the ectoderm changes into neuroectoderm and it gives rise to a neural plate. Then this notochord is developing, notochordal canal is developing, और यहाँ पे neural plate में क्या हो रहा है या ये वाले ectoderm में क्या हो रहा है? A neural groove will be forming. Neural groove will change into
a tube. Again the same thing. This is the ectodermal region. This is the endodermal region. जो pink color में दिख रहा है, that is the mesoderm. In the mesoderm in center you can recognize a dot, that is the notochord. ये जो न्यूरोएक्टोडर्म है, न्यूरल प्लेट है, उसके अंदर क्या फॉर्म हुआ, एक न्यूरल ग्रूव फॉर्म हुआ. दैट न्यूरल ग्रूव फॉर्म होने के बाद में जब ये डिप डाउन कर गया, एक न्यूरल ट्यूब फॉर्म हो गया. यू कैन इमेजिन दिस न्यूरल ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ एन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हेड एंड टिल द टेल एंड, एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म. तो न्यूरल plate, groove, and then the plate is folded in the form of neural folds, and finally a tube will be formed. So this is the tube-like structure which is formed, and this tube will be giving rise to the neural, ultimately the structures of the central nervous system. न्यूरल फोल्ड जब बने ग्रूव में तो उनका फ्यूजन कहाँ से स्टार्ट हुआ? इट हैज स्टार्टेड इन दी नेक रीजन. सो फर्स्ट द फ्यूजन स्टार्ट्स इन द नेक रीजन, तो ऊपर से खुला रह जाएगा एंड देन इट विल बी ओपन एट द डिस्टल एंड ऑल्सो. सो एन एंटीरियर न्यूरोपोर विल बी क्रिएटेड एंड अ पोस्टीरियर न्यूरोपोर is created. So start in the region of neck. Fusion of this neural plate, it begins in the region of the neck, and then the tube will be open in the region, in the cephalic region and in the caudal region. तो दो न्यूरोपोर्स फॉर्म हो जाएंगे, एक एंटीरियर न्यूरोपोर और एक पोस्टीरियर न्यूरोपोर. So this is the anterior neuropore, this is the posterior neuropore. So you can recognize the anterior neuropore now and the posterior neuropore. The anterior neuropore closes at 25th day and posterior neuropore closes at 28. पहले closure किसका होगा? Anterior neuropore का, and then the posterior neuropore will be closed. अगर इनका closure नहीं होता है, then there occurs, if anterior neuropore is not closed, then a condition occurs. That condition is known as cranioschisis. The failure of proper fusion of cephalic part of the neural tube is known as cranioschisis. ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा, हाँ खड़े हो जाओ बेटा, 3rd नंबर. हाँ, क्यों हंसी आ रही है? क्या चल रहा है? ये क्या पढ़ा रही हूं मैं? न्यूरल ट्यूब पढ़ा रही हूँ. कौन सी लेयर से बनता है न्यूरल ट्यूब? लेयर से बनता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म? एंडोडर्म से बनता है ना? कल ही पढ़ा था तुमने कि ये एंडोडर्म से बनता है. अभी मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है कि कौन सी लेयर से बनता है. अगर एंटीरियर न्यूरोपोर, अपर न्यूरोपोर क्लोज नहीं है, दैट इज क्रेनियोसिस. इफ यू डोंट वांट टू स्टडी, इफ यू डोंट वांट टू रीड, जस्ट डोंट रीड, डोंट लिसन, बट डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स. एक जो 4-5 लोगों को लेके बैठ जाते हो ना, ये मतलब पूरा जो एनवायरमेंट है, दैट इज मतलब वो पूरा चला ही जाता है. और फिर 4 लोग और स्टिमुलेट होंगे पास, और 4 लोग स्टिमुलेट होंगे उससे. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ना पढ़ो, मुझे क्या फर्क पड़ना है. So if the brain is also not formed along with that, that means cranioschisis के साथ में तो cephalic है ना ही नहीं, cranium नहीं बना, लेकिन उसके साथ में पूरा का पूरा nervous tissue अगर नहीं बना तो brain ही नहीं बना, that results in anencephaly. ठीक है? तो cranioschisis is the failure of proper fusion of the cephalic part of neural tube. And then in most extreme cases कि बिल्कुल वहां पे nervous tissue है ही नहीं, then it will lead to anencephaly. So anencephaly results from failure of, it results from non-closure of anterior neuropore. जो upper end पे जो neuropore था, अगर वो नहीं close हुआ या fusion नहीं हुआ tube का, तो that will be leading to cranioschisis and then to anencephaly. Then now this is the neural tube. ये neural tube जो head end से tail end तक बन रही है,
उसका cephalic end, you can easily tell me कि cephalic end जो है that will give rise to brain and its caudal end will give rise to spinal cord. इस ट्यूब के cephalic end से brain बनेगा और इसी ट्यूब के caudal end से क्या बनेगा? spinal cord. अब brain में क्या क्या parts होते हैं हम डिवाइड कर सकते हैं? इस ट्यूब को देख के हम उसे सबसे पहले 3 डायलेटेशन अपीयर होते हैं. तो एंड सबसे क्रेनियल जो डायलेटेशन है दैट इज फॉर द फोर ब्रेन, देन सेकेंड वन इज फॉर द मिड ब्रेन एंड थर्ड द कॉर्डल डायलेटेशन इज नोन एज हाइंड ब्रेन. उसके बाद 3 से 5 डायलेटेशन बन जाते हैं. फोर ब्रेन के 2 कॉम्पोनेंट्स हैं, टीलेनकेफेलॉन, डायनकेफेलॉन. मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मीजेनकेफेलॉन. हाइंड ब्रेन अगेन 2 में डिवाइड हो जाता है, मेटेनकेफेलॉन और माइलेनकेफेलॉन. तो 4 ब्रेन दैट कंसिस्ट ऑफ टीलेनकेफेलॉन एंड डायनकेफेलॉन. तो टीलेनकेफेलॉन पार्ट से बनते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. ये हम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन में भी देखेंगे. आज सिर्फ ये स्लाइड देख लो, इसके बाद हम कॉर्डल एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमें डिस्कस करना है. तो सबसे बिल्कुल क्रेनियल एंड में जो टीलेनकेफेलॉन है दैट विल गिव राइज टू द 2 cerebral hemispheres and cavity of the neural tube will give rise to lateral ventricles. कितने ventricles हैं? 4 ventricles हैं. तो 2 lateral ventricles are developed from the cavity of टीलेनकेफेलॉन and it is giving rise to cerebral hemisphere. डायनकेफेलॉन will give rise to the 2 thalami. जो 2 thalamus हैं 2 sides, they are derived from the डायनकेफेलॉन and their cavity is known as third ventricle. Then midbrain is derived from mesencephalon. The hind brain or rhombencephalon will be divided into metencephalon and myelencephalon. So metencephalon will give rise to pons and cerebellum, and then medulla is derived from the myelencephalon. बस ये वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी याद रखनी है तुम्हें. mesencephalon एंड rhombencephalon. फिर प्रोजेनकेफेलॉन किसमें डिवाइड हुआ? टेलेनकेफेलॉन एंड डायनकेफेलॉन में. mesencephalon मिड ब्रेन सिनोनिमस है. rhombencephalon डिवाइड हुआ मेटेनकेफेलॉन एंड माइलेनकेफेलॉन में. मेटेनकेफेलॉन से बने पॉन्स एंड सेरिबेलम और माइलेनकेफेलॉन से बने मेड्यूला. अब ये जो मेटेनकेफेलॉन और माइलेनकेफेलॉन के बीच में जो कैविटी है दैट इज द फोर्थ वेंट्रिकल. Fourth ventricle actually is bounded by pons and medulla both. That is why this cavity is the cavity of the hind brain, or I can say cavity of the forebrain is the lateral ventricle. और उसी में थर्ड वेंट्रिकल ही है, फोरब्रेन से ही डिराइव्ड है. मिड ब्रेन में कोई कैविटी नहीं है. फोर्थ वेंट्रिकल जो है दैट इज द कैविटी ऑफ द पोन्स एंड मेड्यूला, एंड ऑन द अदर एंड इट इज बाउंडेड बाय द सेरिबेलम. तो ये सब तुम ग्रॉस एनाटॉमी में पढ़ोगे. नाउ द कॉर्डल 2/3 पार्ट ऑफ दिस सेम न्यूरल ट्यूब. दिस न्यूरल ट्यूब इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लेयर? एक्टोडर्म, एंड दैट टू फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म. वो जो न्यूरल प्लेट, न्यूरल ग्रूव, न्यूरल फोल्ड ने एक पूरा ट्यूब बनाया है. ट्यूब के हेड एंड पे, हेड एंड से या सिफेलिक एंड से ब्रेन डेवलप होगा, कॉर्डल एंड से स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा. ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन में फिर 2 पार्ट्स हैं, टीलेनकेफेलॉन एंड डायनकेफेलॉन. मिड ब्रेन, hind brain is again divided into metencephalon and myelencephalon. myelencephalon में medulla है. अब इसके बाद जो caudal 2/3 portion है that will give rise to the it will be giving rise to the spinal cord. So spinal cord develops from caudal 2/3 portion of the neural tube. Now I am coming to the development of spinal cord proper. कि स्पाइनल कॉर्ड अगर तुमको डेवलपमेंट लिखने को आएगा तो तुम लिखोगे कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल ट्यूब एंड न्यूरल ट्यूब इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, और नोटोकॉर्ड उसके डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रहा है. उसके बाद में जो स्पाइनल कॉर्ड का अगर तुमको ट्रांसवर्स सेक्शन समझ में आ गया है
तो तुम्हें ये समझ में आया होगा कि हाँ, क्या हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेंटर में क्या है स्पाइनल कॉर्ड के? सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल को सराउंड क्या कर रहा है? ग्रे मैटर, और उसके बाहर क्या है? व्हाइट मैटर। तो सिमिलरली 3 लेयर्स इसी न्यूरल ट्यूब में डिफरेंशिएट होंगी, जो 3 अलग अलग टाइप के जोन बनाएगी। तो सबसे इनर मोस्ट जो कंपोनेंट है न्यूरल ट्यूब का, जिससे बाकी के वेंट्रिकल्स बनते हुए आ रहे हैं, जो कैविटी है न्यूरल ट्यूब की, एंड इनर जोन ऑफ वेंट्रिकुलर जोन, एंड दैट इज कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड लेयर्स. Then middle layer is known as mental zone, which will give rise to gray matter, and outer marginal zone will give rise to white matter. तो इसी न्यूरल ट्यूब में अंदर से बाहर की तरफ 3 zones we can identify. The inner ventricular zone will give rise to central canal, and of course it consists of undifferentiated cells, क्योंकि यही differentiate होके mental layer बनाएंगे. Mental layer will give rise to the gray matter, और इसी मेंटल लेयर में जो न्यूरॉन्स बनेंगे उन्हीं के एक्सॉन्स तो जाएंगे व्हाइट मैटर में. तो दोज एक्सॉन्स विल बी कलेक्टिवली प्लेस्ड इन दी मार्जिनल जोन. तो मेंटल जोन, मार्जिनल जोन एंड इनर अनडिफरेंशिएटेड जोन, these 3 zones will be formed in the neural tube. तो इनर लेयर में जो सेंट्रल कैनाल है, that is lined by the ependymal layer. Then second layer is the mental layer, and outer layer is the marginal layer. Marginal layer में क्या बनेगा? Marginal layer से white matter, and it consists of what? White matter consists of what? Axons which are mostly myelinated. तो white matter है, myelinated axons है. अब मेंटल लेयर जो है या ग्रे मैटर जो है वो एंटीरियरली डिफरेंट है और पोस्टीरियरली इट इज डिफरेंट, क्योंकि एंटीरियर हॉर्न में कौन से टाइप के न्यूरॉन्स हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विच विल बी गिविंग राइज टू मोटर रूट, एंड द पोस्टीरियर हॉर्न कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स. देयर प्रोसेसेस will be connected to the sensory root. तो यानी mental layer में और differentiation होना अभी बाकी है. So that differentiation will occur with the help of the development of a sulcus. That sulcus is known as sulcus limitans. तो अब यहाँ पे mental layer में एक sulcus बनेगा. That sulcus is the sulcus limitans. The mental layer anterior to this sulcus is known as basal plate, and mental layer posterior to this sulcus is known as alar plate. ऐसा क्यों है? क्योंकि फंक्शनली 2 अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स बनेंगे. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दी बेसल प्लेट या एंटीरियर जोन, दे आर लार्जर इन साइज and their axons are longer. And always remember, sensory जो neurons हैं, they are smaller in size and they have elongated dendrites also. So those will be jumbled up or they will be crumpled up in this या differentiation जब inner layer से हो रहा है तो smaller neurons will be coming to the alar plate, and the larger neurons they will be in the basal plate, and these 2 layers they are divided by a sulcus limitans. सेंटर में वही सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है, पेरीफेरी पे मार्जिनल लेयर है जिसमें व्हाइट मैटर डेवलप होगा. So neurons of the mental layer, they differentiate into dorsal alar plate and a ventral basal plate. Basal plate will be containing motor neurons and alar plate will be containing sensory neurons. अब क्या बचा स्पाइनल कॉर्ड में? वो सेप्टा, anterior median fissure and posterior median septum. तो धीरे धीरे by the proliferation and bulging of both alar plate and basal plate, there will be formation of dorsal median septum. पीछे की तरफ यहाँ septum बन जाएगा and anterior median fissure. जब इतना सारा मैटर इस कैनाल को सराउंड कर लेगा तो सेंट्रल कैनाल विल बी या कैविटी ऑफ द ट्यूब विल बिकम स्मॉलर इन साइज एंड इट विल गिव राइज टू द
central canal. That means there occur proliferation of the cells in the mental layer, and by the proliferation of the cells, the cavity will be squeezed. It will become narrow. So, and that will give rise to the central canal. So again, वही है जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट में और क्या हुआ है, मार्जिनल लेयर विल इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एडिशन ऑफ असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड इंटरसेगमेंटल नर्व फाइबर्स. डू यू ऑल एग्री टू इट कि उसमें असेंडिंग फाइबर्स हैं, डिसेंडिंग फाइबर्स हैं, सब कहाँ है, मार्जिनल लेयर में है या व्हाइट मैटर में है. फिर फ्यूनिकुलाई विल बी डेवलपिंग. एक तुम्हें पता है कि देयर इज एंटीरियर फ्यूनिकुलस, लेटरल फ्यूनिकुलस एंड पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस. सो दीज फ्यूनिकुला ये डॉट से दिखाया है कि ये वेंट्रल फ्यूनिकुलस बनेगा, यहाँ पे लैटरल फ्यूनिकुलस बनेगा और पीछे डॉर्सल फ्यूनिकुलस बनेगा. किससे डिमार्केट कर रहे थे हम फ्यूनिकुलस को? sulcus से, by the attachment of the anterior root and the posterior root. जहां जहां वो attached हैं उनके बीच का region was lateral funiculus और पीछे और आगे. अब myelination of the nerve fiber starts at 4th month and it is continues till the first postnatal year. एक बच्चा जब born हुआ है तब myelination completed नहीं है. माइलिनेशन इसमें लिखा है कि कब कंप्लीट हो रहा है, 1 साल का होने के बाद में. सम बुक्स मतलब पहले मैंने पढ़ा था कि माइलिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एज ऑफ 5 years. इसीलिए वो जो बेड वेटिंग जो रहता है बच्चों में, दे कैन नॉट कंट्रोल इट बिकॉज माइलिनेशन इज नॉट देयर माइलिनेशन इज नॉट कंप्लीट एंड दैट कंप्लीट्स यूजुअली बाय द एज ऑफ 5 years. और अगर 10 years तक भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तब भी बेड वेटिंग है, सब कुछ है, then one has to consult a doctor. So myelination starts at 4th month, it continues till first postnatal year, और इसका range है till 5 years it is completed. Now development of meninges, spinal meninges भी develop होंगी. कौन कौन सी meninges है around spinal cord? ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड एरेक्नॉइड. तो अब याद रख लो कि सिर्फ ड्यूरा मैटर मीजोडर्मल है, एरेक्नॉइड और पाया मैटर आर एक्टोडर्मल. ठीक है, ड्यूरा मैटर इज मीजोडर्मल एंड पाया एंड एरेक्नॉइड आर एक्टोडर्मल and they are developed by the mesenchyme which will be surrounding this spinal cord. सब एरेक्नॉइड स्पेस किस किस के बीच में है, कौन सी 2 लेयर्स के बीच में है? एरेक्नॉइड और पाया मैटर. एंड सब्सिक्वेंटली जैसे वेंट्रिकल्स के अराउंड, वहां वेंट्रिकल में फ्लूइड CSF फिल हो रहा है, तो सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी फ्लूइड जो है वो दैट विल बी फिल्ड. देन यू नो दैट इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इट्स पोजीशन आल्सो चेंजेस. जैसे जब डेवलप हो रही है स्पाइनल कॉर्ड, तो इट इज कंटिन्यूइंग टिल द एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. फिर L1 L3 पे आती है. कब, किसमें हमें L3 लेवल पे मिलेगी? न्यूबॉर्न में. न्यूबॉर्न में स्पाइनल कॉर्ड एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L3 वर्टिब्रा एंड इन अडल्ट इट इज L1. तो एडल्ट क्या, उसके बाद ही 3 months के बाद भी इट विल बी कमिंग टू द L1. देन this was about the development of the spinal cord. तो अगर हम इसे समराइज करें कि स्पाइनल कॉर्ड किससे बना, एक वर्ड में बोलें तो किससे बना? न्यूरल ट्यूब से. न्यूरल ट्यूब किससे बनी? एक्टोडर्म से. कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रही है? सिफेलिक एंड से कॉर्डल एंड तक. कॉर्डल 2/3 portion of the neural tube gave rise to spinal cord. अब डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उस न्यूरल ट्यूब के अंदर डिफरेंशिएशन हुआ. तो कितने रीजन स्पाइनल कॉर्ड में? सेंट्रल कैनाल, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर. तो सेंट्रल कैनाल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैविटी ऑफ द न्यूरल ट्यूब. ग्रे मैटर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लेयर? Mental layer. White matter is derived from
मार्जिनल लेयर, इतना ही याद रखना है। उसके बाद सेप्टा बन जाएंगे। अच्छा, मेनिंजेस भी प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, तो मेनिंजेस आर 3, आउट ऑफ दैट ऑलवेज रिमेंबर ड्यूरा मैटर इज डिराइव्ड फ्रॉम mesoderm and the paya and arachnoid are derived from ectoderm. ठीक है, तो ये this is the summary of the development of the spinal cord. A few words about the development of the vertebral column, क्योंकि इनकी जो associated anomalies होती हैं, that means anomalies of the development of spinal cord and vertebral column, they are related. So that is a few words about the development of vertebral column. कोई बताएगा वर्टिब्रल कॉलम बोन है तो कौन से लेयर से बन रहा है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म? मेसोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज सब किससे बनते हैं? मेसोडर्म से। मेसोडर्म को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मेसोडर्म के? पैराक्सियल, इंटरमीडिएट एंड लैटरल प्लेट मेसोडर्म। तो पैराक्सियल मेसोडर्म जो है दैट गिव राइज टू डर्मेटोम, मायोटोम एंड स्क्लेरोटोम, एंड दिस स्क्लेरोटोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स। तो 3 टाइप के मेसोडर्म है, पैराक्सियल, इंटरमीडिएट एंड लैटरल प्लेट। इसके पहले हम लैटरल प्लेट थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, कब? डेवलपमेंट ऑफ हाँ, हार्ट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने बॉडी कैविटी के लिए स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर और सोमैटोप्लूरिक लेयर डिस्कस करा है। इंटरमीडिएट मेसोडर्म विल गिव राइज टू यूरोजेनाइटल सिस्टम दैट विल कम। पैराक्सियल इज अराउंड द एक्सिस, बीच में से सेंटर के पास में, सबसे पास में वर्टिब्रल कॉलम ही है, तो उसी से याद रख लेना कि पैरा एक्सियल मेसोडर्म से बनते हैं वर्टिब्रल कैनाल। एंड पैराक्सियल मेसोडर्म का कंपोनेंट है स्क्लेरोटोम, सो दैट विल गिव राइज टू द वर्टिब्रल कैनाल। अब ये वही अपनी ट्राइलमाइनर डिस्क जिसमें एक एक्टोडर्म है, बीच वाला मेसोडर्म है और नीचे एंडोडर्म है। इसमें ये जो हाईलाइट करा हुआ है ये पैराक्सियल मेसोडर्म है, क्योंकि पैराक्सियल मेसोडर्म इज गिविंग राइज टू सर्टेन स्ट्रक्चर्स, दोज आर नोन एज सोमाइड्स। Those somites are 40 to 44 in number and then they will be giving rise to vertebra. अब सोमाइट तुमने ये वाले पिक्चर में देखिए कि ऐसी ऐसी स्वेलिंग्स बन रही हैं सोमाइट्स की, तो इनसे वर्टिब्रा कैसे डेवलप हो रहे हैं? At 4th week of the development, each vertebra is derived from 2 somites. एक वर्टिब्रा कितने सोमाइट से डिराइव्ड हो रहा है? 2 सोमाइट से। कैसे? क्योंकि जो सोमाइट का स्क्लेरोटोम पार्ट है दैट डिफरेंशिएट्स इनटू अ क्रेनियल पार्ट एंड अ कॉर्डल पार्ट। और वर्टिब्रा कैसे बना है कि कॉर्डल पार्ट ऑफ ईच सोमाइट फ्यूजेस विद द क्रेनियल पार्ट ऑफ कंसेक्यूटिव सोमाइट। बस याद रखने का क्या है कि एक वर्टिब्रा में अगर मान लो उसका डेवलपमेंट अफेक्टेड है तो 2 सोमाइट्स अफेक्टेड होंगे, या क्योंकि एक वर्टिब्रा इज फॉर्म्ड बाय 2 सोमाइट्स। Caudal part of one somite will fuse with the cranial part of the other somite, and then they will be giving rise to body of the vertebra, and that is known as centrum. Every vertebra has 2 parts. What are the 2 parts of a vertebra? Body and vertebral arch. प्रोसेसेस तो बाद में निकलेंगी ना, पहले क्या है? ईच वर्टिब्रा हैज अ बॉडी एंड अ वर्टिब्रल आर्च along with 7 processes. लेकिन वो 7 processes या तो बॉडी से निकल रही है या वर्टिब्रल आर्च से निकल रही है, लेकिन अगर पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रा है तो वो क्या है? बॉडी एंड वर्टिब्रल आर्च. This vertebral arch has got a foramen that is known as vertebral foramen, और उसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये जो वर्टिब्रल आर्च है ये कैसे बन रहा है? इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 components. That means from the 2 sides this vertebral arch will be coming, and these fused sclerotomes grow dorsally around the neural tube and then they form vertebral arch. So this way
the vertebral column will be forming एक के ऊपर एक, and then subsequently the curvatures of the vertebral column will be forming. So there are two curvatures, two primary curvatures of the vertebral column and two secondary curvatures. What are the two primary curvatures? जो बर्थ पे ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कौन से दो कर्वेचर्स हैं? thoracic and the sacral curvature, and two curvatures they develop subsequently. एक डेवलप होगा 3 months की एज पे जब नेक होल्डिंग आती है, वो क्या है? सर्वाइकल, और दूसरा होता है लंबार रीजन में जब बच्चा चलना सीखता है. So that is developed at the age of 1 year. So there are two curvatures, the cervical curvature and the lumbar curvature. They are the secondary curvatures, and they develop as the cervical curvature when the child lifts the head, and lumbar as a result of walking. Thoracic and sacral curvatures are the primary curvatures. Then what happens to the notochord? ये जनरली पूछा जाता है कि notochord ऐसा लगता है कि वो vertebral column या spinal cord कुछ तो बना रहा होगा, पर notochord it degenerates. What are the remnants of the notochord? Nucleus pulposus of the ये जो intervertebral disc है, इसके दो parts होते हैं, center में nucleus pulposus और periphery पे annulus fibrosus. So nucleus pulposus part of the intervertebral disc is formed by the notochord along with the ligament of dens. So इसमें might be there. Now coming to the anomalies of the development of spinal cord along with the development of vertebral column. तो सबसे जो कॉमन एनॉमली होती है दैट इज स्पाइना बाइफिडा. इट अकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ टू हाफ्स ऑफ वर्टिब्रल आर्चेस. दोनों वर्टिब्रल आर्चेस जहां फ्यूज हो रही है वहां पे एक प्रोसेस निकलता है दैट इज दी स्पाइनस प्रोसेस. अगर ये दोनों प्रोसेस फ्यूज ही नहीं हुई तो स्पाइन कैसा हो जाएगा? बाइफिड, या हम कह सकते हैं कि वहां पे गैप हो जाएगा. सो दैट कंडीशन इज नोन एज स्पाइना बाइफिडा. इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स. तो उस स्पाइना बाइफिडा को भी दो में डिवाइड करते हैं, स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा एंड स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका. स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा में क्या होता है कि ओनली वन वर्टिब्रा इज अफेक्टेड एंड स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट अफेक्टेड. क्या सिर्फ अफेक्टेड हो रहा है? वो वर्टिब्रल आर्च जो थी वर्टिब्रल कॉलम की, वो सिर्फ फ्यूज नहीं हुई, लेकिन अंदर स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सेफ है, उसको कुछ भी नहीं है. देन दैट कंडीशन इज नोन एज स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा. समटाइम्स अ tuft ऑफ हेयर माइट अपीयर ऑन द स्किन, लेकिन अंदर कुछ भी अफेक्टेड नहीं है. इससे सीवियर टाइप का क्या है? स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका. अब स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट्स की इसके अंदर क्या क्या प्रोट्रूड हो रहा है. अगर मान लो सिर्फ मेनिंजेस प्रोट्रूड हुई, स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड मेनिंजेस है, तो फ्यूजन नहीं हुआ स्पाइन का और क्या बाहर आ गया? सिर्फ मेनिंजेस. then that is known as spina bifida with meningocele. That means protrusion of a sac containing meninges and cerebrospinal fluid. अभी भी neural tissue protrude नहीं हुआ है. अगर neural tissue भी protrude होता है then that is known as spina bifida with meningomyelocele. That means protrusion of a sac containing meninges with spinal cord or nerve roots. अगर मान लो spinal cord is open due to failure of neural folds to develop. अब क्या है? spinal cord खुद भी open रह गई अगर, then that condition is known as spina bifida with myeloschisis. मेरी बात समझ में आ रही है? spina bifida क्या है? spina bifida occulta क्या है? जब सिर्फ वर्टिब्रल आर्च फ्यूज नहीं हुई है, मतलब उसमें स्पाइनल कॉर्ड बाहर नहीं आया है, स्किन से वो डिफेक्ट बिल्कुल क्लोज्ड है, टफ्ट ऑफ हेयर वहां पे प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन न्यूरल टिश्यू या मेनिंजेस अफेक्टेड नहीं है. फिर अगर मान लो सिर्फ मेनिंजेस प्रोट्रूड हो रही है तो हम उसे बोल रहे हैं मेनिंगोसील. अगर
स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोट्रूड हो रहा है तो मेनिंगोमाइलोसील, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तभी प्रोट्रूड होगा अगर मेनिंजेस प्रोट्रूड होंगी, तो मेनिंगोमाइलोसील। अगर मान लो स्पाइनल कॉर्ड क्लोज नहीं हुआ, वहां का न्यूरल ट्यूब में फ्यूजन नहीं हुआ, देन दैट इज नोन एज माइलोशाइसिस। दैट माइलोशाइसिस might be accompanied with the spina bifida, then that condition is known as spina bifida with myeloschisis. So these are the three developmental abnormalities associated with the development of the spinal cord. You can identify this is spina bifida occulta, सिर्फ meninges है, spinal cord अपनी जगह पे है तो meningocele। अगर स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोट्रूड हो गया तो मेनिंगोमाइलोसील। अगर स्पाइनल कॉर्ड ओपन है, न्यूरल ट्यूब क्लोज ही नहीं हुआ, तो स्पाइना बाइफिडा विद माइलोशाइसिस। नाउ आई विल बी कमिंग डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी लेफ्ट yesterday। ठीक है, कल जो पार्ट कवर नहीं करा था वो कर लेते हैं। दैट मीन्स लीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड associated with the ascending tracts and the descending tracts। एक बार ये फोटो वापस से देख लो। एंटीरियर फ्यूनिकुलस में कौन कौन से ट्रैक्ट्स हैं, लेटरल फ्यूनिकुलस में कौन से ट्रैक्ट्स हैं, और पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस में कौन से ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस में क्या क्या ट्रैक्ट्स हैं? fasciculus, gracilis and cuneatus। लैटरल फ्यूनिकुलस में क्या है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल, और यहाँ लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल भी है। एंटीरियर फ्यूनिकुलस में क्या है? एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, और 3 एक्स्ट्रा पिरामिडल, टेक्टोस्पाइनल, वेस्कुलोस्पाइनल एंड ओलिवोस्पाइनल। अब हम देखेंगे एक एक ट्रैक के डिस्ट्रक्शन से क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, बताओ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की इंजरी होगी तो क्या होगा? विच सेंसेशंस आर कैरीड बाय लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट? पेन एंड टेम्परेचर। इज इट अ क्रॉस ट्रैक्ट और एन अनक्रॉस ट्रैक्ट? क्रॉस ट्रैक्ट। दैट मीन्स अगर लेफ्ट साइड का लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ है तो उस पेशेंट को राइट साइड में वो छू के नहीं बता पाएगा कि ये गर्म पानी है या ठंडा पानी है। उसको उसको प्रिक करेंगे पिन कहाँ? राइट साइड में, तो वो नहीं बता पाएगा। तब अगर मान लो राइट साइड में नहीं बता पा रहा है ये सब, तो ट्रैक्ट कौन सा अफेक्टेड हुआ है? लेफ्ट साइड का, बिकॉज दिस इज अ क्रॉस ट्रैक्ट। So so there will be a contralateral loss of pain sensation below the level of lesion. There will be contralateral loss of thermal sensation below the lesion. The patient will not respond to pinprick and cannot recognize the hot and cold objects. Then anterior spinothalamic tract, तुम लोग बताओ पहले anterior spinothalamic tract क्या कैरी कर रहा है? हाँ, टच एंड प्रेशर, मतलब क्रू टच है, फाइन टच नहीं है, लाइट टच है। क्रॉस ट्रैक्ट है, अनक्रॉस्ड है? क्रॉस्ड है, लाइक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। इसका पाथवे ऑलमोस्ट ऐसा ही है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक की तरह, पर क्रॉस ट्रैक्ड है। So there will be contralateral loss of light touch sensation and pressure sensation. The patient will not be able to feel a light touch of cotton placed on the opposite side. तो ये contralateral है दोनों, anterior spinothalamic and lateral spinothalamic। जब तुम लोग इसमें पढ़ोगे मेड्यूला में, तब एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो मीडियल लेमनिस्कस के साथ में ट्रैवल करेगा। जो हम फेसिकुलस, ग्रासिलिस और क्यूनिएटस के लिए पढ़ते हैं उनके साथ चला जाएगा। एंड दिस लेटरल स्पाइनोथैलेमिक विल फॉर्म अ सेपरेट लेमनिस्कस, दैट इज स्पाइनल लेमनिस्कस। तो अगेन सेंसेशंस वही है, ट्रैक्ट वही है, उसका नाम चेंज हो जाएगा बस। देन कमिंग टू दी fasciculus, gracilis and fasciculus cuneatus, कहाँ प्रेजेंट है दोनों? पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस में। इन्हें तो नहीं भूलना है। कौन कौन से सेंसेशंस कैरी करते हैं? fasciculus, gracilis and cuneatus carry what? Touch, pressure, vibration,
2-point discrimination, they are carried by fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus. From upper limb, which tract carries these sensations? ये दो है ना, ये cuneatus, हाँ, cuneatus from correct. Sit down. Fasciculus cuneatus from upper limb and fasciculus C से याद रखना, पहले आता है वो upper limb से. अच्छा, ये ट्रैक्ट fasciculus cuneatus क्रॉस ट्रैक्ट है या इप्सिलेटरल है? अगर मान लो इस साइड का डिस्ट्रक्शन, इप्सिलैटरल, मतलब अगर राइट साइड का ट्रैक्ट में डिस्ट्रक्शन हुआ है तो राइट हाफ ऑफ द बॉडी से ही उसको 2-point डिस्क्रिमिनेशन, प्रेशर, वाइब्रेशन ये सब फील नहीं होगा. बस ये इप्सिलेटरल वर्ड याद रखना है. इंजरी विल रिजल्ट टू इप्सिलेटरल लॉस ऑफ पोजीशन, मूवमेंट, ipsilateral loss of vibration, ipsilateral loss 2-point discrimination below the level of the lesion. Then next disease and next condition is the Tabe's dorsalis. This appears in the syphilis infection. So in the syphilis infection in severe stages what happens is, इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है, इट रिसाइड्स इन दी डॉर्सल रूट गैंग्लियन. कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है? एक हर्पीज जोस्टर में, और दूसरा टेब्स डॉर्सालिस, दैट अकर्स बिकॉज ऑफ सिफिलिस. तो ये किसको अफेक्ट कर रहे हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लियन को. तो कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा? सेंसरी पोर्शन विल बी अफेक्टेड, क्योंकि सेंसरी नर्व रूट विल बी एंटरिंग थ्रू दी. So it is a selective destruction of nerve fibers at the point of entrance of posterior root into spinal cord. So especially in lower thoracic and lumbosacral region, it might result in loss of some sensation. इतना याद रखना कि टेब्स डॉर्सालिस में सेंसरी लॉस होता है. अब डिपेंडिंग ऑन दी फाइबर्स, सारे ही सेंसरी फाइबर्स आर एंटरिंग थ्रू दी सेंसरी रूट. पेन टेम्परेचर हो, चाहे टच पिन पॉइंट, तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या ये अफेक्ट कर रहा है और कौन से रीजन में वो ऑर्गेनिज्म है, उस पर डिपेंड करके देयर विल बी लॉस ऑफ दीज थिंग्स. नाउ कमिंग टू द लीजन्स ऑफ द डिसेंडिंग ट्रैक्ट. डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो सकते हैं एंड लोअर मोटर न्यूरॉन. Will anybody define upper motor neuron and lower motor neuron lesions for me? पहले तुमने उसमें पढ़ लिया है फिजियोलॉजी में? नहीं पढ़ा है. देखो, किसी भी इसको हम ऐसे बोलेंगे, मान लो सपोज एक क्रेनियल नर्व है. फेशियल नर्व का न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पॉन्स में. यहां से आवाज आई कि या इधर से, मुझे नहीं पता. ठीक है, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? पॉन्स में. ठीक है, तो फेशियल नर्व किसको कंट्रोल कर रही है? फेशियल मसल्स को, है ना. 5 टर्मिनल ब्रांच और भी उसके फंक्शन है, पर चलो हम मोटर की बात कर रहे हैं. तो मोटर नर्व सप्लाई टू द फेस इट इज गिविंग. तो अपर मोटर न्यूरॉन फॉर द फेशियल नर्व विल बी, अगर fibers which are controlling the facial nerve from the cerebrum till its nucleus, if they are destructed, मतलब न्यूक्लियस अगर डिस्ट्रक्ट होता है और इसके ऊपर के फाइबर्स अगर डिस्ट्रक्ट होते हैं जो इस न्यूक्लियस को कंट्रोल कर रहे हैं, then that lesion will be upper motor neuron lesion for the facial nerve. उसके बाद फेशियल नर्व जब अपने न्यूक्लियस के नीचे आ गई, अगर वहां कहीं भी इसका डिस्ट्रक्शन होता है, then that is the lower motor neuron lesion. मेरी बात समझ आ रही है? मतलब कि ऐसे ही स्पाइनल नर्व्स के लिए तुम कैसे करोगे कि if some spinal nerve, suppose it is originating from C5 C6 spinal segment, तो उसके ऊपर अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो वहां तक उसके लिए कमांड लेके आ रहा था, अगर वो सब डिस्ट्रक्ट होता है तो दैट विल बी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. और नीचे अगर इसके डिस्ट्रक्ट होता है C5 C6 के नीचे, तो दैट विल बी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. अगर मान लो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो रहा है तो व्हाट विल बी, इट विल बी द लीजन ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, या अगर हम क्रेनियल नर्व की बात करें तो इसको हम कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्ट बोलते हैं.
मतलब क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के लिए सेम ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज कॉर्टिको बल्बार, अगर स्पाइनल नर्व्स के लिए बोलते हैं तो कॉर्टिको स्पाइनल। इसका लीजन कभी भी होता है तो वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स ऑल्सो, ये भी डिसेंड हो रहे हैं ऊपर से, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन दी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। अब एक बात बताओ कि स्पाइनल लेवल पे चीजें अगर इंटैक्ट हैं और सिर्फ ऊपर का कंट्रोल जो है वो लॉस्ट हो रहा है, तो जो पैरालिसिस होता है दैट इज फ्लैसिड काइंड ऑफ, नहीं दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड काइंड ऑफ। मतलब ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें कमांड मिल रहा है, लेकिन ऊपर से कमांड आ नहीं रहा है, तो मसल विल बी गोइंग इनटू अ कंडीशन ऑफ स्पास्टिक पैरालिसिस। और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है देन दैट विल बी दी फ्लैसिड पैरालिसिस। तुम कितना ही कमांड दे लो ऊपर से, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि उसका लोअर मोटर न्यूरॉन कंट्रोल है ही नहीं, तो दैट विल बी फ्लैसिड पैरालिसिस एंड मसल विल बी एट्रोफीड। तो ये बस दो बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो याद रखने हैं। बाकी तुम्हें ये याद रहे कि बाबिन्स्की साइन मिलता है अपर मोटर न्यूरॉन में, और अगर मान लो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक का डिस्ट्रक्शन हुआ तो देयर विल बी, अगर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक डिस्ट्रक्ट होता है तो देयर विल बी लॉस ऑफ फाइन स्केल्ड वॉलंटरी मूवमेंट्स एट द distal ends of the limbs on the same side or on the opposite side. It is also क्रॉस ट्रैक, वो डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब इसका लेकिन डेकसेशन कहाँ हुआ है, मेड्यूला के लेवल पे हुआ है, तो उसके ऊपर लीजन हो रहा है या उसके नीचे हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे अफेक्ट कर रहा है। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक का डिस्ट्रक्शन विल ऑल्सो लीड टू स्पास्टिक पैरालिसिस, clasp knife reaction, it will be like that. Then लोअर मोटर न्यूरॉन में फैसिड पैरालिसिस होगा, एट्रोफी हो जाएगी मसल की, देन मस्कुलर फेसिकुलेशन, कंट्रैक्शन, रिएक्शन ऑफ डीजेनरेशन। सम नोन कंडीशंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जिनके पेशेंट्स ऐसे ही इसी नाम के कंडीशन से आते हैं, जिसमें पहला है स्पाइनल शॉक सिंड्रोम। एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है, अभी अभी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई तो स्पाइनल कॉर्ड थोड़े टाइम के लिए कहाँ पे चला जाता है कि इसमें ना कोई मोटर होगा ना कोई सेंसरी फंक्शन होगा, सो दैट स्टेट इज नोन एज स्पाइनल शॉक सिंड्रोम। ना ऑटोनॉमिक फंक्शन हो रहा है, ना मोटर हो रहा है और ना सेंसरी हो रहा है। सो दिस स्टेट ऑफ स्पाइनल शॉक सिंड्रोम माइट लास्ट फॉर 30 to 60 minutes और इट में लास्ट फॉर 6 weeks। ऐसे ये स्पाइनल कॉर्ड बाद में पता लगेगा कि सेगमेंट कौन सा अफेक्टेड है, क्या है, बट स्पाइनल कॉर्ड एज अ होल माइट गो इनटू शॉक, देन दैट कंडीशन इज नोन एज स्पाइनल शॉक सिंड्रोम एंड दिस इज अ टेम्परेरी फेज, और बाद में हमें पता लगेगा कि लॉन्ग टर्म लॉस जो है वो क्या हुआ है। नाउ कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्शन सिंड्रोम, एक लेवल पे अगर पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हो गया तो क्या क्या अफेक्ट्स हो सकते हैं उसके। देयर विल बी बायलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, bilateral spastic paralysis below the level of the lesion, bilateral loss of sensation below the level of, देखो sensation loss तो होगा, bilaterally होगा, then the spastic इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर वाला ट्रैक चला गया है, लोअर मोटर न्यूरॉन इसलिए हो रहा है क्योंकि उस लेवल का चला गया है। अब एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में क्या क्या होगा, मैंने एक पिक्चर डाला था दैट, जो तुम्हारे कॉम्पिटेंसी में है स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें सिरिंगोमाइलिया एक कंडीशन है जो सबको आना चाहिए, मतलब बाकी आए या ना आए, दैट इज रिलेटेड टू सिरिंगोमाइलिया इज रिलेटेड टू सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम माइट अकर ड्यू टू अदर रीजंस आल्सो, बट वन कंडीशन इज सिरिंगोमाइलिया। अब अगर मान लो सिर्फ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज अफेक्टेड, तो कौन से फाइबर्स पहले अफेक्टेड होंगे, सेंट्रल कैनाल के आसपास क्या क्या अफेक्टेड होगा पहले बताओ। सेंट्रल कैनाल के आसपास कौन कौन से ट्रैक्स हैं जो अफेक्टेड हो सकते हैं,
हाँ, इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल अफेक्टेड होगा, और lateral spinothalamic tract will be affected. So if lateral spinothalamic tract is the first one or most common one to be affected, corticospinal में पहले anterior spinothalamic will be the anterior corticospinal will be affected, lateral one will also be affected, dorsal column का कुछ part हो सकता है. So these tracts they will be affected. अब इसमें क्या होगा, most of the time cervicothoracic इसमें हो क्या रहा है कि जो उस फर्स्ट मैंने पहले शुरू में तुमको स्लाइड में डिस्कस करा था कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्योंकि एक क्रॉस ट्रैक्ट है तो उसमें सर्वाइकल फाइबर्स आर डीपर एंड दे आर क्लोजर टू दी सेंट्रल कैनाल. तो इसीलिए पहले अफेक्ट किस रीजन में आ रहा है, सर्वाइकल रीजन में. अपर लिम्ब में क्यों आ रहा है फिर? अगर सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड हो रहा है तो अपर लिम्ब में क्यों अफेक्ट आ रहा है? Because that is also supplied by C5 to T1. वही नर्व है ना, सर्वाइकल सेगमेंट से आ रही है, C5, C6, C7, C8. तो अगर सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में नेक रीजन विल बी अफेक्टेड, द अपर सर्वाइकल विल बी अफेक्टेड एंड द अपर लिम्स विल बी अफेक्टेड. Slight loss will be there in the truncal region and you can see sacral region is mostly spared. क्योंकि जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स भी डीपर कौन से हैं, सर्वाइकल फाइबर्स हैं, सो दे विल बी फर्स्ट अफेक्टेड. सो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम ऐसे ये बीच में एक सिस्ट का फॉर्मेशन या कुछ भी हो सकता है. अगेन दिस इज मतलब एक इजी फॉर्म में समझाया है कि सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में देखो क्या क्या पार्ट अफेक्टेड हो रहा है. पीछे वाला पार्ट छूट गया है और यहाँ अफेक्टेड हो रहा है. तो दो ट्रैक्ट मेनली अफेक्टेड हो रहे हैं, दी लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल एंड दी लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड दी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. तो कॉर्टिकोस्पाइनल और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अगर अफेक्टेड होंगे तो पेन एंड टेम्परेचर लॉस होगा प्लस पैरालिसिस होगा, दोनों ही ऑपोजिट हाफ का होगा और उसमें अफेक्टेड ये रहेंगे. देन दिस सिरिंगोमाइलिया विच इज देयर फॉर यू इन योर कॉम्पिटेंसी. तो सिरिंगोमाइलिया इज अ सिस्ट और अ कैविटी इन द स्पाइनल कॉर्ड विच इज अराउंड द सेंट्रल कैनाल. मतलब यही सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम ही इसमें होगा, पर सिरिंगोमाइलिया खुद क्या है, वो एक सिस्ट है या कैविटी है जो किसके अराउंड बनी है, सेंट्रल कैनाल के अराउंड बनी है. So presence of a fluid filled cavity within the spinal cord and it lies outside the central canal but it is around the central canal. मतलब उसके अंदर नहीं है सेंट्रल कैनाल में, उसके बाहर बनी है. Now very important and the last slide which everybody should know, spinal cord कितना समझ में आया है या नहीं आया. If you can answer the Brown-Sequard syndrome, मतलब हमारे जो टीचर्स होते थे वो स्पाइनल कॉर्ड तुमने कितना समझा या नहीं समझा, दे जज इट इफ यू कैन आंसर क्वेश्चंस ऑन दी Brown-Sequard syndrome. Brown-Sequard syndrome is hemisection of spinal cord at a certain level. मतलब एक तरफ का स्पाइनल कॉर्ड एक सर्टेन लेवल पे इसका हेमी सेक्शन हो गया तो क्या क्या अफेक्ट्स होंगे, दैट इज जैसे ये शो करा है राइट साइडेड हेमी सेक्शन एट T12 लेवल. तो अब मुझे बताओ क्या क्या ट्रैक्स मतलब सेंसरी लॉस कहाँ होगा, T12 पे स्पाइनल कॉर्ड आधा चला गया है राइट साइड का, तो पोस्टीरियर कॉलम के अफेक्ट होने से क्या होगा, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस में कौन कौन से ट्रैक्स हैं यहाँ पे, fasciculus, gracilis एंड क्यूनिएटस. तो ये इसके लॉस होने से क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ टच, प्रेशर, पेन, वाइब्रेशन, दैट विल बी लॉस्ट. सो देन जो लेवल है उस पे तो सारे ही सेंसेशंस जो हैं दे आर लॉस्ट. देन लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर किस साइड में होगा, ऑपोजिट साइड में, क्योंकि कौन सा ट्रैक्ट अफेक्टेड होगा, पेन एंड टेम्परेचर कौन से ट्रैक्ट से जाते हैं, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट.
which supplies the contralateral side. तो अगर राइट साइड वाला अफेक्ट है तो देयर विल बी लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन दी ऑपोजिट साइड. सो यू कैन सी ये ब्लू कलर से दिखाया है कि लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द लीजन. एंड देन पैरालिसिस ऑन द सेम साइड, क्योंकि डेक्सेशन हो चुका है उसके बाद में उसी साइड का ट्रैक्ट अफेक्टेड हो रहा है, तो देयर विल बी पैरालिसिस. And then there will be loss of pain, proprioception and vibratory sensations on the same side. क्या क्या लॉस हुआ? पेन एंड टेम्परेचर ऑपोजिट साइड का चला गया. टच प्रेशर एंड वाइब्रेशन कहाँ का लॉस हुआ? सेम साइड का, बिलो द लेवल ऑफ द लीजन. क्योंकि एक ट्रैक्ट अगर एक तरफ से एक जगह भी अगर स्पाइनल कॉर्ड चला गया तो नीचे का ट्रैक्ट तो अपने आप कॉम्प्रोमाइज हो गया ना. तो अगर यहाँ पे T12 पे भी हो रहा है तो नीचे लंबार और सेक्रल जो रीजन है दैट विल बी अफेक्टेड. तो सेम साइड में टच प्रेशर वाइब्रेशन जाएंगे और ऑपोजिट साइड में पेन एंड टेम्परेचर. सो दिस इज दी ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम. कि अगर तुम इससे सारे के सारे जो ट्रैक्ट्स हैं यू कैन आंसर. तुम्हें इतना तो समझ आ गया ना कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कैसा ट्रैक्ट है? इप्सिलेटरल है, कॉन्ट्रालेटरल है? कॉन्ट्रालेटरल है. क्या कैरी कर रहा है? पेन एंड टेम्परेचर. देन द fasciculus, gracilis and cuneatus are ipsilateral or contralateral? Ipsilateral, and they are carrying what? Touch, pressure, vibration. Then corticospinal tract is an ascending tract or a descending tract? It is a descending tract, और अगर ये चला जाएगा तो paralysis हो जाएगा. So if you are clear with this,